So how do you students? Uh, we have planned that we should have three sets of paper in IP practical, and yesterday we discussed one set of paper, one set of papers, and this time I am going to discuss second paper, and in this paper there will be the data for which you have to create the data frame. So this is the paper actually. So here this is the detail of the data that we have: country, population, birth rate, update date. So from this data you have to create the data frame. And the first question which you will have to show here, it is of 8 marks, right? So 2 marks for creating the data frame and 1 mark for displaying the complete data for China and India. Second question, display country, population and birth rate of Brazil and Pakistan. Third question is create a CSV file from this data. And the fourth question is retrieve data from above created CSV file into a new data frame DF1 with columns country and population only. Okay. And the next question will be to draw. Just a second, just a second. Okay. And the next question is plot a bar chart depicting the country on x-axis and the corresponding population on y-axis. So here this is the layout of the graph. So you will have to create this, and this is of uh, 2 marks. So 2 marks creation of data frame, 2 marks creation of the graph, and 4 marks for the queries. So this way consolidated marks are 8 for the data frame creation. And so let's start. I have taken the data जो कि मैंने अभी आपको पेपर में दिखाया, और उसका मैं डिक्शनरी ऑलरेडी बना चुका हूँ, और इस डिक्शनरी को लेकर के हम जो है एक डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं. सो डेटा फ्रेम बनाने के लिए और तो कुछ नहीं, बस सबसे पहला काम जो होगा वो होगा import 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 pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib dot pyplot as plt, and dictionary is here, and using this dictionary हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, और डेटा फ्रेम का नाम हम लेते हैं डेटा फ्रेम का नाम हम लेते हैं df. So df is equal to pd dot data frame
and dict 1। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ इस बार इन्होंने इंडेक्स क्या ली है। इंडेक्स या तो 10080 लेते हैं। इंडेक्स इन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, तो ठीक है हम इसी से क्रिएट कर लेते हैं। इस टाइम पर जो इंडेक्स होंगी वो होंगी आपकी 01 and so on, 0123। So let's start create the data frame। So data frame is created, and now this is the data frame। So here country, population, birth rate, update date, so this is the data frame created। Now the first question which we have is India and uh, China की display the complete data for China and India। So very simple। So यहाँ पे क्या करना है, df dot location condition country, that is df country country is equal to China or df dot country is equal to India, comma कंप्लीट डेटा तो वैसे ही आ जाएगा, अगर कोई स्पेशल कॉलम लेना है तो बात दूसरी है, अदरवाइज तो यहाँ पर कंट्री हो गया, NDI हो गया, एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड this is also not required। And now let's see what happens। तो यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं चाइना की डिटेल एंड इंडिया दोनों कंट्रीज की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन है हमें पॉपुलेशन चाहिए, कंट्री चाहिए और बर्थ रेट चाहिए। तो किस किस की चाहिए, हमें चाहिए पाकिस्तान की और ब्राजील की। सिंपल, df डॉट लॉक, अगेन कंडीशन लगेगी, ब्रैकेट df ब्राजील ब्राजील
not Brazil. Country country is equal to Brazil or DF. Country is equal to Pakistan की हमें चाहिए डिटेल। इसमें चाहिए आपको कंट्री नेम, कॉमा, पॉपुलेशन and birth rate। birth rate. So here job is done, and now enter. Okay, what is the issue? DF country is equal to Pakistan, DF is equal to Brazil, and DF country. Yes. Okay, birth rate. So here ब्राजील एंड पाकिस्तान का ये डिटेल आपके सामने रहता है कि ब्राजील एंड पाकिस्तान का कंट्री क्या है, पॉपुलेशन कितनी है और उसका बर्थ रेट क्या है। अब इस टाइम पर थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमें इस डेटा फ्रेम को जो है हमें CSV में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हो सकता है? बहुत आसान होगा। df.toCSV और नाम देना है पॉपुलेशन, देते हैं पॉपुलेशन डॉट CSV, कॉमा, यूज calls is equal to कंट्री एंड पॉपुलेशन को लेके करना है। कंट्री एंड पॉपुलेशन ये हो गया एंड ब्रैकेट। तो जो ये दो कॉलम्स लेकर के हमने इसको CSV में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, so here
क्वेश्चन कुछ ये नहीं था, क्वेश्चन था आपका एक CSV फाइल क्रिएट करना है। सो बेटर है, बहुत आसान होगा। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। बिकॉज हमारा जो डिटेल था वो ये था, क्रिएट CSV फॉर्म फ्रॉम अबव डेटा फ्रेम। तो सिंपल CSV क्रिएट करना था। अब इसको रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव करने के लिए क्या करें? रिट्रीव करने के लिए हमें करना पड़ेगा रीड CSV। यस, चले रीड CSV, और इसको हमने नए डेटा फ्रेम में लेकर के आना है। df डॉट रीड CSV, और इसमें करना क्या है? करना इसमें यह है कि हमें एक उसका न्यू डेटा फ्रेम बना df1 विथ कॉलम कंट्री एंड पॉपुलेशन ओनली। तो जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है उसमें से केवल और केवल दो हमको कॉलम्स लेने हैं, और वो कॉलम्स हैं आपके कंट्री एंड पॉपुलेशन। रीड CSV, रीड करते हैं, नेम वाज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डॉट CSV, और उसके साथ साथ हमें किसके साथ में कॉलम चाहिए? कॉलम यूज कॉल्स इज इक्वल टू चाहिए कंट्री कॉमा पॉपुलेशन। लेट्स सी। No attribute read df, sorry, this is pd read CSV. Pd dot read CSV, and only now print df1। तो इस डेटा फ्रेम के अंदर केवल दो ही कॉलम्स होंगे, पॉपुलेशन एंड कंट्री नेम। सो कंट्री एंड पॉपुलेशन। सो योर डी इज ओवर नाउ। ई, अब यहाँ पर हमें करना है ग्राफ। ग्राफ के लिए क्या करना है? एक्स यूज कर लीजिए, एक्स इज योर कंट्री, कंट्री हो गया, एंड वाई इज योर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, एंड इस पे आप लीजिए अपना बार plt डॉट बार विद x कॉमा वाई कॉमा कलर, कलर आपका हो जाएगा ग्रीन। सो हो गया ग्रीन plt, एंड उसके साथ साथ जो लेबल है वो भी दे देते हैं, plt डॉट x लेबल, x लेबल कंट्री कॉमा फॉन्ट साइज
इज 12 एंड इसका कलर हमने लेना है, कलर लेते हैं रेड। कलर रेड हो गया। देन वाई लेबल चाहिए, plt डॉट वाई लेबल स्पेलिंग पॉपुलेशन, population and font size again 12 and color G, population it should be in billion. And billion. और इसके साथ में हमने देते कलर भी दे दिया ग्रे और plt डॉट ग्रेड और ग्रेड के साथ साथ करना है plt डॉट शो। So here this is so this is your bar graph. So this is data frame 2. The complete discussion of the paper is here, and this was the dictionary. डिक्शनरी में आपको कंट्री दिया हुए हैं, पॉपुलेशन दिया, बर्थ रेट दिया है एंड अपडेट डेट दिया है। उससे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, df इज इक्वल पी डॉट डेटा फ्रेम, जो कि आप जानते हैं। देन उसको हमने प्रिंट करा के देख लिया। प्रिंट कराने के बाद हमें जो फर्स्ट क्वेरी थी आपकी डिफरेंट कंट्रीज का डिटेल प्रिंट करना था। Actually my laptop is a bit sluggish, so the result is appearing very slow. सो कंट्री चाइना एंड कंट्री इंडिया का डिटेल मुझे चाहिए था, तो हमने ले लिया df डॉट लॉग df कंट्री चाइना एंड इंडिया। एंड उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान एंड ब्राज़ील की कंट्री नेम, पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट भी चाहिए था, वो भी हमने कर लिया। देन अगला हमने जो लिया है वो लिया है उसका CSV क्रिएट करवाया। तो df डॉट टू CSV पॉपुलेशन CSV इंडेक्स फॉल्स एंड हियर df, क्योंकि इंडेक्स नहीं जाना था, df1 बिकॉज इंडेक्स अगर देते तो इंडेक्स भी उसके अंदर आ जाता, तो वी डिड नॉट वांट इंडेक्स। नाउ df इसको अब हमने नया क्रिएट कर डेटा फ्रेम क्रिएट करना था, जो CSV हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसी CSV को रीड करके हमें इस पूरे CSV से केवल 2 ही कॉलम्स चाहिए थे, तो 2 कॉलम्स हमने यूज कॉलम्स करके 2 कॉलम्स लिए एंड कंट्री एंड पॉपुलेशन से अपना ये डेटा फ्रेम बनाया जिसका नाम है df1। df1 के बाद हमारा आ जाता है ग्राफ का। ग्राफ बहुत सिंपल है, जिसके अंदर कंट्री एंड पॉपुलेशन की ओर हमें ग्राफ बनाना है। सो एक्स लेबल हमने दिया कंट्री एंड फॉन्ट साइज है 12 एंड इसका जो कलर है वो रेड, एंड जो वाई लेबल है उसमें पॉपुलेशन इन बिलियंस, ये इसका टाइटल लेबल रहेगा। एंड फॉन्ट साइज अगेन 12 एंड कलर होगा इसका जी, एंड plt डॉट ग्रेड भी हमने दे दिया। हम चाहें तो इसमें इसका टाइटल भी दे सकते हैं, तो टाइटल देने के लिए हम क्या करते हैं, टाइटल के लिए हम आते हैं यहाँ पर और देते हैं plt डॉट टाइटल भी ले लेते हैं।
टाइटल हमने कंट्री वाइज पॉपुलेशन एनालिसिस, कंट्री वाइज पॉपुलेशन एनालिसिस, फॉन्ट इसका कर देते हैं 14, फॉन्ट साइज 14 एंड कलर हम इसका लेते हैं रेड और ग्रीन, कलर ग्रीन। सो हियर इसका टाइटल भी तैयार हो गया। ये हो गया कंट्री वाइज पॉपुलेशन एनालिसिस। तो ये आपका एक प्रोग्राम बन गया। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में ये चीज़ आ गया होगा कि डेटा फ्रेम लेना है। डेटा फ्रेम में नॉर्मली आपको क्या करना है, डिक्शनरी के फॉर्म में अगर आप डेटा फ्रेम बनाओगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये डिक्शनरी आपने बनाया है, डिक्शनरी क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से ही था कि जो डेटा फ्रेम आपने देखा था, पहले कंट्री था, देन पॉपुलेशन था, बर्थ रेट, इस टाइप का हमने डेटा फ्रेम दिया था जो कि एक टेबल में था। और इसको बनाना बहुत आसान है कि आप जो है कंट्री, पॉपुलेशन, बर्थ रेट एंड अपडेट डेट, इनको एक डिक्शनरी में रखिए और इनका जो डेटा है उसको आप लिस्ट में रखिए। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट डिक्शनरी बन जाएगा, देन उसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो दिस वे आप डेटा फ्रेम का क्वेश्चन कर सकते हैं। होप आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी आप ये बता दें कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन परफॉर्म करना है और सॉल्यूशन देना है। इस और सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि इसी का आपने जो है टेबल भी क्रिएट करना है। ये जो डेटा फ्रेम है इसी के बेस पे आपको टेबल भी क्रिएट करनी है। तो टेबल के अंदर क्या क्या आपको लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो टेबल क्रिएट होगी उसका जो नाम होगा, पॉपुलेशन पॉप नाम से कर सकते हैं, जिसमें कंट्री एक फील्ड होगा। कंट्री के साथ पॉपुलेशन जो है इंटीजर हो सकता है, एंड बिकॉज डेटा ज़्यादा है तो बिग इंट आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप बर्थ रेट, क्योंकि ये जो डबल में चाहे तो डबल मिले, बर्थ रेट जो भी है आप चाहे तो रख सकते हैं या डेसिमल में रख सकते हैं। उसके साथ साथ अपडेट डेट जो है, जो एसक्यूएल में आप डेट फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो क्वेरीज होंगी, क्वेरीज तो बहुत आसान होंगी और मुझे उम्मीद है क्वेरीज तो आप कर लेंगे, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। फिलहाल इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का डेटा फ्रेम मैं आपको कल समझाता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।